Good morning, ma'am. We are ready. As you can see, our strength. Okay, that's really great. Nice to see all those students joining physically, finally, the classes and these kind of workshops. Hello, students. Good morning, everyone. Ma'am, just wait for 1 minute. Definitely. Good morning to one and all present here. A very warm welcome to the respected teachers, Dr. Monica Sharma, Assistant Professor, Computer Engineering Department, Dr. Jyoti Chaudhary, Assistant Professor, Computer Engineering Department, Dr. Nidhi Sharma, Assistant Professor, Computer Engineering Department, Mr. Sunil Singh, Assistant Professor, Computer Engineering Department. I would like to extend a special welcome to our guest of honor, Mrs. Poonam Panchal, founder and managing director at Spikage. Spikage is an emerging IT firm from North India that offers library automation, workshops, seminars, expert lectures, software development, 6-week internships, etc. The founding brains behind this organization are having more than 15 years of experience in the same field. I am Monica from pre-final year. Today we all have gathered here for the guest lecture come workshop on web design. So the objective of today's workshop is to guide the students about free web designing tools, G Suite and Canva. For further guidance, I would like to hand over the mic to Poonam ma'am. Thank you. Shall I start with my lecture and presentation, ma'am? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you so much, Nidhi ma'am, TIT College, all the staff members and students for inviting me for this lecture. And it's always a pleasure talking to students, interacting with students and teachers. So I am, as the brief, my introduction is already shared with you. So I just started my entrepreneurship journey 3 years ago. I was earlier to that I was also working in government schools as information manager. Then I find that I need to do things that I like to do. And in this journey, I would like to share my personal experiences with you. When we talk about Canva, when we talk about Google G Suite account, or we say Google account, we might think initially that these are the things that we are, most of you might be already using. I hope I am audible to everyone. Please thumbs up if I am. Okay, great. Very active audience I am having today. And this is a next, actually, very different experience for me having online and offline both mode. This is called a hybrid, actually hybrid lecture and actually hybrid classroom, where you have experts from a remote area and where you are all are sitting together and enjoying the lecture. I hope and I will try to give you all the my expertise, my knowledge. I would I always say कि मैं आपके साथ अपनी knowledge share करूंगी. कुछ नई चीजें I will try to share. कुछ पुरानी भी हो सकती हैं, but उनको नई तरीके से I will make sure कि मैं आपको बताऊं. बट जो भी शेयर करूंगी वो आपके साथ यूजफुल होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये लेक्चर. ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डिवाइसेस के साथ रहते हैं और उसी के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं अपने लेक्चर्स में, वर्कशॉप्स में, क्योंकि हमारे टेक्निकल और टूल्स बेस्ड ही लेक्चर होते हैं. तो आज का ये जो लेक्चर है, आई होप ये या तो ये रिकॉर्ड हो या लाइव हो, या फिर आप नोट डाउन कर लें जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, यू कैन टेक पिक्चर्स. ठीक है, तो ताकि आप बाद में जाके उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस जरूर करके देखें. आज यहाँ से आप जाने के बाद अगर 4-5 नई चीज़ें भी सीख के जाते हो और उनको जाके आज 1 घंटा बैठ के करते हो, देन आई
विल फील कि मैं सक्सेसफुल रही आपको कुछ भी बताने में, कुछ भी शेयर करने में। तो फर्स्ट थिंग मैं जो आपको बता रही थी कि मैंने जब शुरू किया था एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको जब कुछ भी, आप चाहे टीचिंग में हो, स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, और फिर उसके बाद आप चाहे जॉब में जाएं, आप बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर बने, व्हाटएवर, आज तो इतना ज्यादा आपके पास डोमेन है, आप कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, उन सब में ना जो आज आपको भी पता है डिजिटल मार्केटिंग जो एक रोल प्ले करता है, और उस सारे में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, पहले तो ग्राफिक डिजाइनर्स होते थे हमारे पास, हम हायर करते थे और हम उन्हीं पे डिपेंड रहते थे। पर आज जो इस इरा में जब हम हैं, जहाँ पे बहुत ही हैंडी टूल्स हमारे लिए फ्री में अवेलेबल हैं। आज ये जो दो टूल्स मैं आपको बताऊंगी, जो दो टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊंगी, दोनों ही बिल्कुल फ्री हैं और दोनों ही क्लाउड बेस्ड हैं। क्लाउड बेस्ड क्या होती है? जब आपको कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड नहीं करना, कोई ऐप आपको उसके लिए कोई बड़ा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी होती है, डाउनलोड करने होते हैं, इंस्टॉलेशन नहीं करनी होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे होते हैं कि आपने एक ऐप डाउनलोड की और उसमें आपने लॉग इन किया, और आप फिर डिवाइस डिपेंडेंट नहीं होते हो। आज आप कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हो लैब में, कल आप अपने फोन पे जाके उसी को, सेम डिजाइन को कंटिन्यू कर सकते हो, सेम डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, यही होता है ना क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां आपकी डिवाइस डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो ये सभी टूल्स इतने पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये आपको क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस देते हैं। सेकेंडली, जो पहला मेरा फर्स्ट जो रहेगा सेशन वो कैनवा के ऊपर रहेगा। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है कैनवा ने एज एन एंटरप्रेन्योर। मेरे पास, मैं खुद मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का पैशन, मैं एज एन मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे पेंट करना आता है, ड्राइंग करनी आती है, तो मैं वो वाला आर्टिस्ट थी। बट मेरे लिए डिजिटल आर्ट सीखना थोड़ा, मैं फोटोशॉप और वो वाले सॉफ्टवेयर सीखना मुझे ये था कि मुश्किल हो सकते हैं, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो फिर मैंने कैनवा जब देखा, काफी सिंपल लगा। शुरू में सबको कैनवा बहुत सिंपल ही लगता है, एंड दैट इज द ब्यूटी कि ये बहुत सिंपल है। लेकिन जैसे कि एक बहुत होता है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि सिर्फ पेंट ब्रश हाथ में आने से तो कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता, ये तो सिर्फ टूल है। कैनवा भी एक टूल है। तो एंड ऑफ द डे आपको इसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, आपको इसके टूल्स सीखने भी पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को, अगर हम इसको देखें कि ये कैसे इसके सारे टूल्स और उनको लेके हम एक अच्छी चीजें, डिजाइन बना सकते हैं। अब कैनवा सिर्फ पहले डिजाइनिंग के लिए यूज होता था, फ्लेयर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, फिर सोशल मीडिया टूल्स हो गए, आपके सोशल मीडिया किट हो गई, वो आप डिजाइन कर सकते थे। बट अब कैनवा ने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। अभी लास्ट ईयर उन्होंने जो ये किए थे, अभी जो अभी एक महीना पहले ही इन्होंने बहुत सारे, जैसे कैनवा ड्रॉ का है, एआई बेस्ड इन्होंने किए हैं, जिसमें मैजिक राइट है, ठीक है, मैजिक ड्रॉ है, डिजाइन है, बहुत सारे हैं जो आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब चीजें बता सकूं। तो आपका जो आज का लेक्चर है वो मेन वेबसाइट बेस्ड हमने रखा है कि आपको वेबसाइट कैनवा में भी कैसे बनानी है वो भी दिखाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत मैं आपको डिजाइन, बेटर डिजाइन आप कैसे बना सकते हो, चाहे वो आप फिर किसी भी उस तरीके से बना रहे हो, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करूंगी। जस्ट अ मिनट।
I hope my screen is visible to everyone. Visible to everyone? Yes, ma'am. ओके, तो ये एक मेरी प्रेजेंटेशन है। मैं चाहूंगी कुछ एक स्टूडेंट्स इसको ये स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। इफ एनीवन प्लीज ज्वाइन बाय स्कैनिंग दिस कोड, आई विल बी हैप्पी। विल बी लाइक इंटरेक्टिव रहेगा थोड़ा सा। तो ये आज का जो पूरा लेक्चर है, इसमें कैनवा के देखो टू थ्री टाइप के कैनवा अकाउंट होते हैं, जिसमें कि नॉर्मल यूजर होता है, फिर प्रो होता है जिसको एडिड फैसिलिटीज और एलिमेंट्स और फीचर्स दिए जाते हैं, जिसमें अनलिमिटेड डिजाइन आपको टेम्पलेट दिए जाते हैं, इमेजेस आपको दी जाती हैं, ऑडियो वीडियो काफी सारा कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। लेकिन जो कैनवा स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए कैनवा बनाया है, वो कैनवा एजुकेशन अकाउंट है। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री दिया जाता है, जिसमें प्रो के जो भी फीचर्स होते हैं वो आपको सब फ्री में दिए जाते हैं। एंड द गुड थिंग इज, आप कॉलेज में हैं, आपके पास भी कैनवा जो स्टूडेंट अकाउंट है वो आपको फ्री में अवेलेबल है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट निधि मैम टू कोऑपरेट एंड कॉन्टेक्ट सुरेंद्र सर रिगार्डिंग दिस, ताकि सब स्टूडेंट्स को उनका ये कैनवा का एजुकेशन अकाउंट फ्री वाला अकाउंट मिल सके। ठीक है, एक बार मैं आपको ये दिखाती हूँ कैनवा का एजुकेशन अकाउंट के जो कुछ फीचर्स कैनवा ने अपनी साइट पे ही मेंशन किए हैं। आप खुद भी जाके इस पे canva.com/education पे जाके इसको देख सकते हैं। इंस्पायरिंग टीचर्स एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स, पहली लाइन काफी कुछ बता देती है कि टीचर्स को ये काफी इंस्पायर करता है और स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए ये इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब ज्वाइन करते हो, ये अकाउंट आपके जो टेक्निकल टीम है वही आपको प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके बाद ही आपको ये अकाउंट दिया जाता है। फिर उसमें आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो आप इसमें ना क्या कर सकते हो कि आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ये एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं, एक्टिविटी प्रेजेंटेशंस हैं ये बेसिकली, और जिसमें 5-6 लोग साथ में मिलके इस पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो कि 5-6 लोग एक साथ एक ही प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये जो है इसमें कुछ एक फीचर्स इसमें इन्होंने जो बताए हैं, इंक्रीज एंगेजमेंट, डिलीवर इम्पैक्टफुल फीडबैक इन वन प्लेस, हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड क्रिटिकल स्किल्स। तो ये आप जाके आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार जाके इसको देख लेना। मैं इसमें आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ चैट बॉक्स में भी डिटेल में इसके सारे जो है इसके बारे में फीचर्स। राइट, कैनवा अपने आप में भी एक एलएमएस का भी वो करता है, फीचर देता है, जहाँ पे आप क्लासरूम बना सकते हो, स्टूडेंट्स को एज ए टीम आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो कैनवा की टैगलाइन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। ओके, तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की है और कैनवा का ये वो है टैगलाइन है जिसको ये बहुत दिल से फॉलो करते हैं। इस ये एक आज के लेक्चर की है कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर कैनवा में कैसे डिजाइन करना है वो रहेगा, इंटरफेस के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसमें। कैनवा एजुकेशन वाला जो अकाउंट है, पहले तो उसके बारे में देख लेते हैं कि ये एक डिजाइन ग्राफिक डिजाइन का प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। विजुअल अपीलिंग प्रेजेंटेशंस के लिए, इन्फोग्राफिक्स के लिए, फ्लायर्स, सोशल मीडिया ग्राफिक्स और बहुत कुछ, इसके अलावा बहुत कुछ। कैनवा ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स, जो मैं आपको दिखाऊंगी भी और आपको भी पता है, जैसे ही हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं उसमें आपके पास कैसे वो आ जाते हैं, टेम्पलेट आ जाते हैं साइड में, किसी भी साइज में लें आप, किसी या तो आप कैटेगरी वाइज चूज कर लें या उसमें आप साइज वाइज चूज कर लें। जैसे कि मैं अपने अकाउंट में ही हूँ, मैं आपको अपना अकाउंट दिखा रही हूँ एक बार। I hope this is visible, and this is a very busy account actually. I do design a lot of things every day. तो यहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से जाके भी आप डिजाइन शुरू कर सकते हैं।
या फिर आपके यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। यू माइट ऑल्सो ट्राई डॉक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, टॉकिंग प्रेजेंटेशन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉकिंग प्रेजेंटेशन मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी, बाकी चीज़ें आपको देखना, फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस, ये सब चीज़ें अपने आप देखना। स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्टिंग है वो डॉक्यूमेंट्स वाला है, इन्फोग्राफिक वाला है। काफ़ी अच्छी इन्फोग्राफिक्स इसमें प्री मेड, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक इन्फोग्राफिक का ही हम लेते हैं। क्लिक किया है, सिंपल क्लिक करेंगे आप, और जैसे ही क्लिक किया है यहाँ पे आप देखेंगे ये होता है इंटरफेस। जैसे ही मैंने कोई डिजाइन टेम्पलेट यहाँ से चूज किया, मैंने यहाँ से इन्फोग्राफिक पे क्लिक किया, तो मेरा नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाता है। नेक्स्ट टैब में एक अनटाइटल्ड आता है, तो सबसे पहले आप इसको टाइटल देंगे, इन्फोग्राफिक। तो अभी मैंने टॉपिक चूज नहीं किया, तो मैं पहले टॉपिक देख लेती हूँ कि मैं क्या लूंगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये सभी टेम्पलेट्स हैं। ये रिसेंटली जो मैंने यूज किए वो टेम्पलेट है, और ये सभी ओल्ड। अच्छा, क्योंकि मेरा ये अकाउंट भी एक एजुकेशन अकाउंट है, तो एजुकेशन अकाउंट के ऊपर यहाँ पे एजुकेशन लिखा होता है और ये कैप होती है साथ में, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो फिर आपके ज्यादातर डिजाइन आपको अवेलेबल नहीं होते, 1 और 2 डिजाइन ही आपको अवेलेबल होते हैं, तो काफी रिस्ट्रिक्टेड सा अकाउंट होता है नॉर्मल अकाउंट, बहुत कम उसमें आपको टेम्पलेट्स और रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी अपना एजुकेशन अकाउंट ले लें। तो इसमें देखो आप कितने इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सारी चीजें हैं उसमें, आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडिट करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई देखते हैं इंटरेस्टिंग सा, जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सके। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने एक लिया है। ये एक इन्फोग्राफिक है जिसमें प्रोसेस भी दी जाती है, या इमेजेस को एक प्रोसेस में और उसके इंटरेस्टिंग वे में। इन्फोग्राफिक होता है इन्फो प्लस ग्राफिक का एक कम्बिनेशन और इफेक्टिव कम्बिनेशन। तो इसमें इंफॉर्मेशन भी अच्छे से दी जाती है। तो स्टेप वाइज दिया, जैसे इन्होंने डिफाइन योर ऑडियंस, फर्स्ट स्टेप यही है आपके लिए। फिर कंटेंट क्रिएशन, और उसके अकॉर्डिंग इसमें इमेजेस आ गई हैं। ये सभी क्या है, आइकन है, ये सभी आइकन्स हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इन्फोग्राफिक अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कलर चेंज करना चाहते हैं, आइकन चेंज करना चाहते हैं, या यहाँ से आप कोई भी टाइटल चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। सेम ये देख लीजिए एक बार, सेल वाला ये भी सेम ही है। ऐड पेज करके ब्लैंक पेज लो पहले, फिर उसके बाद यहाँ से आप टेम्पलेट चूज कर सकते हो अगर आपने टेम्पलेट से लेना है, ठीक है। ये तो हो गया टेम्पलेट से लेना, कि अगर मुझे टेम्पलेट से लेना है। अब मैं आपको एक ब्लैंक कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ और लेके दिखाती हूँ। इन्फोग्राफिक किया था हमने अभी। अच्छा, हम सबसे पहले ना लोगो दिखाते हैं आपको। लोगो वाला सबसे सिंपल होता है और इजी भी होता है। अब लोगो के लिए देखो आप यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे ही मैंने लोगो का लिया तो ऑलरेडी प्री डिजाइन कुछ मेरे पास आ गए हैं। मैं इनमें चेंज कर सकती हूँ, जैसे ये है, कोई ब्यूटी ब्रांड के लिए अगर हमें बनाना है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अम, क्या लें, लिया, सिंपल मैंने उसमें अपना नेम चेंज कर किया और ये डिजाइन रेडी। अब इसके एलिमेंट्स देखोगे ना, तो यहाँ पे ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये भी एक टेक्स्ट है, और ये पीछे एक इमेज है, जो कि आप देखोगे ना, जैसे कुछ कोई मेकअप का ही कोई वो है, जिसको मैं आपको दिखाती हूँ, साइड पे एलिमेंट है, उसको ऐड किया हुआ है पीछे। तो ये एक इस तरह से बनाया है। तो ऐसे ही अगर हमें किसी और ब्रांड का बनाना है तो हम इसमें अपने वो बना सकते हैं, यहाँ से हम अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फैमिली है, फोन फैमिली है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको अपना ही दिखाती हूँ।
पीसी ज्वेलर्स का है ये, मैं एक बार देखती हूँ। तो इस तरह से ये डिजाइन प्री जो पहले से लिए हुए हैं उनको भी ले सकते हो, या आप खुद से भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, वो यहाँ से एलिमेंट्स है, सबसे ऊपर है डिजाइन, जो भी हम डिजाइन लेते हैं उसके ये हमारे पास टेम्पलेट आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स। मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम। फिर कुछ एलिमेंट्स जो मैंने रिसेंटली लिए थे वो आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा सर्कल। सर्कल ये तो वो भी स्टैटिक डिजाइन्स, वैसे आप इसमें एनिमेशन वीडियोस भी बहुत अच्छे वाले बना सकते हो। तो जैसे ही मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखती हूँ एलिमेंट्स में जाके, यहाँ पे देखो आप ग्राफिक, फोटो, फोटोज, वीडियोस, काफी सारे तरह के आप इसमें से चूज कर सकते हो कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए, क्या सर्च कर रहे हो। मैं इसमें ग्राफिक को सर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी ग्राफिक में आप देखोगे ना तो अच्छे अच्छे वाले सर्कल के जितने भी ग्राफिक हैं वो आ गए हैं। तो इस लोगों के लिए मैं देख रही थी कि कोई अगर मैं एनिमेशन क्रिएट करती हूँ तो मैं ये ले सकती हूँ, ठीक है। ये देखो, तो ये एक एनिमेटेड लोगो भी मैं बना सकती हूँ अपने उसके लिए, बैनर के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए। तो इस तरह से मैं आपको एनिमेशन और भी बनाना, यहाँ पे थोड़ा इसी में मैं आपको एनिमेशन बनाना भी सिखाती हूँ। हमने लिया यहाँ पे कैफे, ठीक है। कैफे का मैंने लिया ग्राफिक, या मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैं अब आपको एनिमेशन सिखा रही हूँ, लोगो नहीं सिखा रही हूँ। लोगो वाले आप बेसिकली साइज का डिफरेंस है कि लोगो का साइज आपका डिफाइंड होता है, और लोगो में आपको एक इमेज को लेना होता है, फिर टेक्स्ट को लेना होता है। और इसी में मैं आपको एनिमेशन से आपने सिखा रही हूँ कि कैसे आप कीवर्ड्स को सर्च करके और फिर उनको एनिमेट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना मैजिक रिकमेंडेशन है, वो आप देख सकते हो। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड रहता है मैजिक रिकमेंडेशन। तो ये देखो वीडियोस भी मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ, फ्रेम, ऑडियो अगर उससे रिलेटेड कोई है, फोटोग्राफ्स। अब जैसे ये बैकग्राउंड मेरी ब्लैक है तो पहले मैं इस बैकग्राउंड को चेंज करती हूँ, इसको मैं करती हूँ वाइट, और मैं वापस एलिमेंट्स पे आ जाती हूँ। आप इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा जैसे भी आप इसको चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें मैंने लिखा पेंसिल। तो जो भी कीवर्ड लिखोगे ना वैसे ही आपके पास हर तरह की एलिमेंट्स आ जाएंगे, ग्राफिक भी, फोटोग्राफ्स भी, हर तरह के, ठीक है। मैंने इसमें जो भी चाहती हूँ मैं उस पर क्लिक करके ले सकती हूँ। अगर एनिमेशन अवेलेबल होगी तो वो एनिमेशन आ जाएगी, जैसे कि अभी मैंने एक एनिमेशन वाला लिया है, जो मैं लूंगी उसी से रिलेटेड मेरे रिकमेंडेशन भी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने जो लिया था उसी से रिलेटेड मेरे रिकमेंडेशन आ गए हैं, ये आ गए, राइट।
तो एजुकेशन अकाउंट में आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको फ्री है, सब पे ये आपको लिखा हुआ मिलेगा कैप, तो ये फ्री है आपके लिए ऑलमोस्ट सारी चीजें। तो मैं कोई एनिमेशन ढूंढ रही हूँ जो इसमें कोई मुझे एनिमेशन मिल जाए, तो उससे रिलेटेड ही फिर मुझे मैजिक रिकमेंडेशन मिलेंगे इसमें, जैसे ये रहा। ठीक है, अब ये मैंने एक मैजिक रिकमेंडेशन से लिया है एनिमेट उसका। ऐसे ही मैं लेती हूँ पार्क। ठीक है, पार्क की बैकग्राउंड लेती हूँ मैं, जैसे कि ये लिया मैंने, और इसको मैंने एक बार ड्रैग किया। देखो अब ये जो इमेज है या एलिमेंट है, इसको मैंने क्या करना है, पोजीशन में जाके इसको मैंने करना है फॉरवर्ड। ठीक है, और इसको जो पीछे वाली है इसको मैं ड्रैग करके पीछे लगा दूंगी। अब ये देखो आप, ठीक है, तो इस तरह से आप एनिमेशन वीडियोस भी बना सकते हो। बेसिकली आपने अपने एलिमेंट्स जो आप चूज करते हैं वो कितने आप इंटरेस्टिंगली चूज करते हैं, कि अगर आप बनाना क्या है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। एक चीज और, इसको अब डाउनलोड कैसे करना है, अगर मुझे सिर्फ इसको एज एन एनिमेशन वीडियो डाउनलोड करना है तो मुझे ये बाकी सारी चीजें हटानी पड़ेंगी जो भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हैं, और फिर मैं उसको यहाँ से जो है, यहाँ से इसकी ड्यूरेशन भी कम या ज़्यादा कर सकती हूँ जितनी मुझे करनी है। जैसे अभी मैंने इसको 2.5 सेकंड का किया है, एंड देन यहाँ पे शेयर और फिर डाउनलोड। डाउनलोड में MP4 वीडियो में ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आप एनिमेशन में बना रहे हैं, कुछ भी एनिमेशन लेके बना रहे हैं, तो वो फिर आपको यहाँ पे गिफ नहीं बनती है, यहाँ पे MP4 ही बनती है। ऑलराइट, और बाकी सारी चीजें अगर आप ग्राफिक, नॉर्मल ग्राफिक लेके बनाते हैं तो उसको आप किसी भी उस तरीके से बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास सारे ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप देखेंगे ना फाइल टाइप में, JPG, PNG, ये सारे हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी जो इसमें बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, वो है आपकी इमेज को जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि मैं पहले अपलोड्स में जाके अपनी कोई इमेज लेती हूँ, जैसे मैंने इनकी इमेज ली मैम की। ठीक है, तो ये इमेज है और इस इमेज को मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे हम, एडिट फोटो, BG रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर क्लिक किया है मैंने और वो बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। ठीक है, अब अगर जैसे कोई हम पोस्टर ही बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने भी इसके लिए आज की इवेंट के लिए पोस्टर डिजाइन किया है, तो बेटर ये होगा कि उसमें अगर हम जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं उनकी इमेज हम साथ में लगा सके, तो दैट गिव बेटर एक इम्पैक्ट कि कौन आ रहा है उसको हम जान सकते हैं। अब मैं इसकी बैकग्राउंड में एक इमेज, कोई भी मैं सर्कल लेके वो यूज करना चाहती हूँ इमेज के पीछे। मैं आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग का वो चीजें बता रही हूँ कि कैसे हम इफेक्टिव डिजाइन बना सकते हैं। तो मैंने इसको एक लाइट सा शेड दूंगी मैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मैम की इमेज को रखा और उसको मैंने पोजीशन में जाके किया फॉरवर्ड। राइट, तो ये इस तरह से हम एक इमेज अगर हमें लेनी है तो वो हम ऐसे भी ले सकते हैं।
और फिर बाकी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड में जाके आप अपनी कैमरा अपने कंप्यूटर से आपकी जो भी इमेजेस हैं वो अपलोड कर सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट आप अपलोड कर सकते हो, सॉरी ऐड कर सकते हो टेक्स्ट, जैसे कि मैंने ये किया यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। तो कुछ एक डिजाइन एलिमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी डिजाइन बनाए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे आप डिजाइन बना सकते हो। जैसे कि ये एक पोस्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप स्पीकर्स को मैंने सबको ऐड किया है यहाँ पे कि कौन इसमें चीफ गेस्ट है, कौन इसमें कोऑर्डिनेटर है, मीटिंग लिंक है, वो सारी चीजें ऐड की है। तो इस तरह के डिजाइन आपको हेल्प करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग में। जब आप सर्कुलेट भी करते हैं तो उससे जैसे आपने गेस्ट को दिया है वो भी अपने सर्कल में सर्कुलेट करेंगे, दे विल फील रिलेटेड, कि रिलेटेबल हो पाएगा उनके लिए कि हाँ इसमें इमेजेस हैं, तो वो काफी उससे उनको हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से आप लोगो डिजाइन करके देखना, इसमें एनिमेशन वीडियोस आप बना के देखना इसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए सारी ही चीजें इसमें, इन्फोग्राफिक से लेके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब इसमें काफी यूजफुल आपके लिए टूल्स हैं इसमें। अब मैं आती हूँ जो हमारा आज का मेन है, वो है वेबसाइट डिजाइनिंग वाला। तो यहाँ पे आप जाएंगे, वेबसाइट ही लिखेंगे हम सीधा, वेबसाइट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ जो पहले से बनाई हुई है वो है, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं बिजनेस में, आपको डिजाइन स्पॉटलाइट यहाँ पे जाके भी मिल जाएंगे आपको वेबसाइट्स। मैं आपका ही एक मैंने अकाउंट लिया था, मैं उसमें जाके देखती हूँ। ये वाला एक अकाउंट मैंने आपके उसे लिया था अकाउंट से ही, तो यहाँ पे मैं जाके देखती हूँ। ये कैनवा का वेबसाइट बिल्डर है जहाँ पे आपको प्री मेड टेम्पलेट मिलेंगे वेबसाइट के लिए, ठीक है। क्रिएट अ कैनवा वेबसाइट, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया टेम्पलेट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। बिफोर यू गेट स्टार्टेड गिव द डिजाइन अ क्लियर नेम सो यू कैन फाइंड इट लेटर इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको किया डिजाइन स्कूल, मैं एक वैसे ही टेम्परेरी नेम दे देती हूँ स्टार्ट डिजाइनिंग। तो ये यहाँ पे है, इसको मैं कभी भी जाके चेंज कर सकती हूँ। अभी क्योंकि मैं इस अकाउंट में फर्स्ट टाइम ही लॉगिन किया है तो ये इट इज गिविंग मी अ टूर, अभी मैं स्किप करती हूँ इसको। जैसे ही मैंने वेबसाइट वाला यहाँ पे चूज किया डिजाइन, तो मेरे पास ये सारे आ गए प्री मेड टेम्पलेट्स, ठीक है। आप जिस पे भी कर्सर लेके जाओगे आ जाएगा कि इसमें 6 ये स्लाइड्स हैं, ठीक है। कितनी स्लाइड्स हैं, जैसे ये एक फूड की है, इसमें भी 6 हैं, और ये भी फूड के ऊपर है जिसमें 5 स्लाइड्स हैं। कैनवा की जो ये वेबसाइट बनती है ये 1 पेज वेबसाइट बनती है, ठीक है। इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपको कोई डोमेन नेम नहीं लेना, उसके लिए पे नहीं करना, आपको कोई होस्टिंग सर्वर या उसके लिए पे नहीं करना है। सिंपल कैनवा अकाउंट आपका होना चाहिए और वहां से जाके आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो विद द वेरी कस्टमाइज लिंक, और प्री मेड टेम्पलेट में से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मार्केट स्पेशलिस्ट का है, मैं ये ले लेती हूँ, राइट। तो मैंने किया अप्लाई ऑल 6 पेजेस, मैंने सभी पेजेस को यहाँ पे ले लिया है, एक साथ आ गए मेरे सारे डिजाइन, ये आ गए। अब इसमें जैसे मुझे चेंजेस करने हैं मैं क्लिक करूंगी और चेंजेस उसमें कर सकती हूँ। इमेज मुझे चेंज करना है, मैं इमेज चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज हो रहा है, ये जो आपको ये ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन मिलता है, ट्रांसपेरेंसी में जाके ना आप इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि अगर इमेज के ऊपर आपको टेक्स्ट को विजुअल बनाना है, विजिबल बनाना है, तो आपको इमेज की ट्रांसपेरेंसी कम करनी पड़ेगी,
देखो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है तो विजिबल रीडेबल नहीं हो रहा है वो, तो मैंने इसमें ट्रांसपेरेंसी कम कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया है। इस तरह से आप इसको जाके एडिटिंग करना, चेंज करना। हाय आई एम, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे आई एम पूनम, यहाँ पे मैं अपने बारे में लिख सकती हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सकती हूँ। अपनी इमेज अगर मुझे यहाँ पे चेंज करनी है तो मैं एलिमेंट्स में जाके, सॉरी अपलोड्स में जाके, ओके यहाँ पे मेरा क्योंकि ये नया अकाउंट है, यहाँ पे पहले से कोई इमेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगी अपलोड इमेज, अपलोड पे जाके मेरे कंप्यूटर में इमेज पहले से होनी चाहिए डाउनलोडेड, वो मैं अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, अम, जैसे कि मैंने ये इमेज ली, ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट, ऐसे। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपने एडिट्स करेंगे। मैं आपको सिर्फ सीधा उस पर ले जाऊंगी कि आप उसको वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, और आपके लिंक्स जो है वो क्लिकेबल कैसे बनेंगे। जैसे कि ये है बुक कंसल्टेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आप, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन बन के आ जाता है। लिंक पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मैं अपना वो लिंक दे सकती हूँ जहाँ पे क्लिक करके मेरे क्लाइंट्स या विजिटर्स जो इस वेबसाइट पे होंगे वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वो लिंक ऐसा लिंक होना चाहिए जहाँ पे आपके बारे में डिटेल हो, है ना। आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो पहले मैं अपने बारे में, जैसे कोई भी पेज जो मेरा पहले से बना हुआ है वो निकाल लेती हूँ। तो मैं अपना कॉन्टेक्टस का पेज, यहाँ पे जो मेरी कंपनी का कॉन्टेक्टस का पेज है वो यहाँ पे लिंक कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया और फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, राइट, और मैंने किया एंटर, दैट्स इट। अब ये एक अंडरलाइन बन के आ गया है इसके नीचे, इट मींस आपका ये एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। इन द सेम वे आप अगर और भी किसी भी टेक्स्ट को ऐड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई ऐड करना है तो ऐसे ही टेक्स्ट आप लोगे और उसको आप डबल क्लिक करके लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने उसको लिंक प्रोवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज और हमें देखनी है कि जितने भी पेजेस हैं उनको ना हमें एक नेम देना है। तो हम यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे, ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू, राइट। तो ये ग्रिड व्यू में हम इनको नेम देंगे, जैसे कि ये मैंने दिया होम, ठीक है, और फिर ये मैंने दिया अबाउट, ये दिया वर्क। यहाँ पे अभी सिर्फ 1 2 3 4 लिखा है, मैं इनको नेम दे रही हूँ, पेजेस को मैंने नेम दे दिया, ठीक है। सर्विसेज, जो भी आप चाहते हो, और इसको लास्ट में मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैं वापस से ग्रिड व्यू हटा देती हूँ। नाउ बस मैं इसको पब्लिश करूंगी। पब्लिश करने के लिए पब्लिश वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट यहाँ पे 2 3 तरीके की आपकी बन सकती है। एक तो है विदाउट नेविगेशन। विदाउट नेविगेशन होती है कि आपकी सिंपल ऐसे, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। पहले हम अपना फ्री डोमेन ले लेते हैं। मैं आपको ये नेविगेशन वाले फीचर्स एक बार बताऊंगी, पहले हम अपना डोमेन नेम जो है वो फाइनल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना आप देखो .my.canva.site, ये प्रीफिक्स सफिक्स है जो इसमें, जिसमें हमने एक प्रीफिक्स ऐड करना है। हम सिर्फ प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट आपका वेबसाइट का लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे पूनम किया, राइट। तो मैं देखती हूँ, ये कह रहे हैं दिस इज नॉट अवेलेबल, तो मैंने किया स्पाइकेस, देखती हूँ मिल ही जाएगा ये तो। ये आई थी, यस,
use a mix of lower case numbers and hyper. ओके, स्पेशल आइकन्स आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मैंने किया है डिजाइन स्कूल TITN स्पेशल कैरेक्टर्स, क्योंकि ये नहीं ले रहा है। कंटिन्यू। तो ये मेरा URL जो है बन के आ गया है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं वेबसाइट के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ रखना चाहती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं चाहती। और एक है हाइड माय वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन, ठीक है। अगर मैं सर्च इंजन में नहीं चाहती हूँ कि ये विजिबल हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अभी मैं हाइड रखूंगी क्योंकि एक टेस्टिंग मोड पे बनाई हुई वेबसाइट है। पब्लिश किया मैंने इसको, राइट। आप देखो ये मेरा डिजाइन स्कूल TITNS का एक URL बन के आ गया है। व्यू वेबसाइट कर सकती हूँ मैं, और ये ब्राउजर में भी मेरा लिंक आ गया है, ठीक है। अब आप देखो ऊपर आ गया है होम, अबाउट। जिस भी सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगी मैं वहां पे जंप कर जाऊंगी, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपके पेजेस बन के आ गए हैं यहाँ पे। ये वन पेज वेबसाइट बोलते हैं इसको, जिसपे आपके एक ही पेज पे आप मेन्यू भी प्रॉपर दे देते हो नेविगेशन के लिए, और सारी चीजें होती है। तो ये आप देखो हार्डली मुझे 10 मिनट लगे होंगे इस तरह की एक वेबसाइट बनाने में, जहाँ पे आप लोगों को अपनी वेबसाइट बना के दे सकते हो। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ बुक का कंसल्टेशन पे, तो मेरा जो मैंने कॉन्टेक्टर्स का लिंक दिया था वहां पे आ गई मैं। आई होप ये आपको काफी हेल्प करेगा। आपके कोई भी कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आप वेबसाइट बना सकते हो। कोई फंक्शन, कोई इवेंट आ रही है, कॉन्फ्रेंस आ रही है, उसके लिए आप वन पेज वेबसाइट ऐसे बना सकते हो। तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इस तरह के डिजाइन्स। आपको कैनवा ना 5 जो है डोमेन के लिए वो देता है, फ्री में देता है कि आप 5 मैक्सिमम बना सकते हो हर एक अकाउंट पे। तो इट इज आस्किंग मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मैंने इसको बोला वेरी इजी, ठीक है। होम पे जाके हम वापस फिर से अपनी होम पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे सारे डिजाइन्स होते हैं, जहाँ से हम ये सारे जैसे मैंने अभी एक ही डिजाइन बनाया है इस अकाउंट में, तो यहाँ पे ये रिसेंट डिजाइन में आ गया है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से और चीजें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स से आप खुद एक बार देखना इनको सारी चीजों को। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी एजुकेशनल आपको प्रेजेंटेशन प्री मेड टेम्पलेट मिलेंगे, जहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। आपके रिज्यूमे राइटिंग है वो इसमें इतने इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ही अच्छे वाले रिज्यूमे आपको सैंपल्स मिलेंगे, टेम्पलेट्स मिलेंगे जो आप चूज कर सकते हो। तो लेसन प्लान बनवा सकते हो आप अपने टीचर्स के लिए। और भी काफी कुछ है, जैसे कि आपका गूगल क्लासरूम होता है, उसका आप हेडर यहाँ से डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो एजुकेशनल अकाउंट में काफी सारे फीचर्स जो होते हैं, जो सिर्फ इसी अकाउंट में दिए जाते हैं, वो जरूर आपने जाके ट्राई करने हैं, बनाने हैं। Nidhi ma'am, can we continue with our next topic, or I think we can also go for a 5 minute or 10 minute break if possible. We will continue it later on. हाँ जी, Right now we have short of time. Hello. कंक्लूड कर दूं मैम? Yes, ma'am. You can continue. ओके, तो फिर एक काम करते हैं, 5-6 मिनट हैं हमारे पास अभी। एक बार मैं गूगल साइट का और जरूर दिखाना चाहूंगी, ठीक है। गूगल सूट का जो हमारा था वो वाला टॉपिक मैं नहीं चाहती हूँ कि वो रहे, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ओनली 5 मिनट। देखो जब हम गूगल में लॉगिन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, हमें सिर्फ जीमेल की फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमें बहुत सारी एप्स मिलती हैं। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस, विजिबल टू एवरीवन। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाके गूगल में जीमेल के अलावा
आप ये सारी एप्स फोन पे भी यूज कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे जिस पे भी आप डिवाइस पे काम कर सकते हैं वो भी वहां पे भी। कोविड में हमने क्लासरूम भी यूज किए, डॉक्स, मीट, ये सब हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। मीट पे हम आज अपनी जैसे ये लेक्चर ले रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साइट्स वाला थोड़ा इसमें बताऊंगी। गूगल साइट्स भी आपको एक बहुत अच्छे वाला फीचर गूगल ने दिया है। sites.google.com पे आपने जाना है, एप्स के थ्रू भी जा सकते हो और डायरेक्टली भी जा सकते हो आप। यहाँ पे भी जैसे हम डॉक्स में जाते हैं तो हमारे पास काफी हमें टेम्पलेट गैलरी मिलती है। ऐसे ही जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, साइट्स पे जाएंगे, तो आपको वहां पे भी टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे कि ये वर्क के लिए है कि अगर आपको कोई अपनी प्रोजेक्ट है, टीम है, इस तरह के अलग अलग इन्होंने टेम्पलेट दिया। स्मॉल बिजनेस के लिए है यहाँ पे, ठीक है, और एजुकेशन के लिए है। जैसे मैं स्मॉल बिजनेस वाला ही लेती हूँ, यहाँ पे मैंने स्मॉल बिजनेस वाला एक टेम्पलेट चूज किया, राइट। तो बिल्कुल सिंगल क्लिक पे इतनी जल्दी 5 मिनट में आपकी वेबसाइट रेडी हो सकती है। मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगी। अब यहाँ पे इमेजेस हैं, सारी चीजें हैं। इमेज यहाँ से मैं लोगो ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, अपलोड करके। लोगो पहले से आपके पास होना चाहिए। मैं अभी कोई भी इमेज ले रही हूँ, राइट। फिर उसके बाद आप फेविकोन होता है जो छोटा सा आइकन आपका दिखाई देता है, जैसे कैनवा का छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, ये फेविकोन बोलते हैं इसको। तो आप ये सारी चीजें अपलोड कर लेना जाके। फिर यहाँ से आप इमेज है, ये इमेज है, तो यहाँ से आप चेंज इमेज करके अपनी इमेज वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अपलोड पे गए तो इमेज आपकी वहां पे पहले से डाउनलोड करके आपने रखी होनी चाहिए, वो आप कर सकते हो, राइट। फिर अबाउट वाला सेक्शन ऐसे ही आप सिंपल क्लिक करेंगे और वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी कि कैसे आप यहाँ से लेआउट्स, डिफरेंट डिफरेंट आप लेआउट्स कैसे ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ से ये आपके ब्लॉक्स हैं, जैसे कि ये 2 इमेज ब्लॉक है, 2 कॉलम वाला, ये 3 कॉलम वाला, मैं ये ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कि आप इमेज से लेके प्रेजेंटेशन, वीडियो, काफी कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो। इवन कैलेंडर भी आप इसमें वो कर सकते हो। ऐसे ही एक और सेक्शन मैं आपको लेके दिखाती हूँ, जैसे ये वाला लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला मैप, मैप भी डाल सकते हैं हम अपने इसमें। तो हमने किया भिवानी हरियाणा, ठीक है। तो ये मेरा भिवानी का मैप यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं इसको ड्रैग करके बड़ा छोटा जो भी करना चाहती हूँ वो मैं इसको कर सकती हूँ। काफी इजी है गूगल साइट्स बनाना। फीचर्स, फाइंड अस ऑन गूगल, ये मैंने यहाँ पे वो दे दिए हैं, इमेज सॉरी टेक्स्ट में चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से आप ये ऐड करके देखना, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इमेज ब्राउजर, बटन आप ऐड कर सकते हो, सोशल लिंक्स आप अपने ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स जो आपने ड्राइव में ऑलरेडी आपके रखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इवन आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है, तो आप स्लाइड्स पे जाके अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं स्लाइड्स पे गई तो मेरी जी सूट फॉर एजुकेशन वाली प्रेजेंटेशन है, मैं इसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी प्रेजेंटेशन आ जाएगी यहाँ पे। और प्रेजेंटेशन कैसे आएगी, पेज वाइज आएगी। अब ये इस तरह की वेबसाइट ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है कि जब उनको अपने कोई एक लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है मिलके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपके एलिमेंट्स जो आप उसमें दिखा सकते हो। फॉर्म्स भी आप यहीं पे ऐड कर सकते हो। आपका फॉर्म पहले से आपने गूगल में बना रखे हैं, फॉर्म्स पे जाके वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फॉर्म्स पे क्लिक करके, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ऐड करना, ये आपका इंसर्ट वाले ऑप्शंस हैं। और ये है आपका पेजेस वाला ऑप्शन कि आपके कौन कौन से पेजेस हैं। अभी एक ही पेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज ऐड हो गया। फिर मैंने किया कॉन्टैक्ट, ये ऐसे आपके पेजेस आ जाएंगे। अब आप अबाउट पे क्लिक करोगे ना बेटा, कि ये ब्लैंक है, सिर्फ हेडर के साथ आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स आप ऐड करोगे, फूटर भी आप ऐड करोगे, राइट।
ऐसे कॉन्टेक्ट वाला भी आप डिजाइन करोगे, सारी चीजें आपको जाके डिजाइन करनी है, पेजेस बन जाएंगे। फिर आ गया हमारा थीम। थीम भी आपका ये है, जैसे अभी करंट जो थीम है उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, कोई भी थीम आप चूज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये देखो थीम चेंज, पूरी की पूरी थीम चेंज कर सकते हो, कलर आपको कोई और चूज करना है वो आप देख सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपने जाके देखने हैं। फिर आ जाते हैं हम फटाफट पब्लिश पे। पब्लिश में वही हमें क्या देना है, अपना प्री, पहले कैनवा में हमने प्रीफिक्स किया था, और यहाँ पे गूगल साइट में हम सफिक्स करेंगे, sites.google.com व्यू जो हम बनाना चाहते हैं हमारा नेम, जैसे मैंने किया डिजाइन। ठीक है, ऑलरेडी टेकन, ओके। डिजाइन स्कूल, ये भी ऑलरेडी। PITNS डिजाइन्स, ठीक है, ये मैंने बनाया, पब्लिश किया, एंड आपकी वेबसाइट रेडी है। व्यू, ये देखो sites.google.com व्यू TITNS डिजाइन के होम पेज पे हूँ मैं, ये है आपकी वेबसाइट। तो इसको अभी बनने में टाइम लगेगा, इसको टाइम मैं आपको सीधा पब्लिश करके बताया है, और एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं वो बताए हैं, राइट। ये देखो आप, तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा बनाने में। अच्छा, एक दो चीजें और हैं कि आप जब भी इसमें एडिट जैसे चेंज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिजाइन स्कूल, तो हर बार आपको ना पब्लिश करना पड़ेगा फिर से जाके। चेंजेस जो होते हैं ना वो ऐसे ऑटोमेटिकली सेव नहीं होते, इसमें हर बार आपको, जैसे आपने एक बार में सारी चीजें चेंज कर ली, फिर उसके बाद उसको पब्लिश करना है। ऐसे नहीं कि एक हेडिंग चेंज की फिर पब्लिश करो, नहीं, सारे चेंजेस करने के बाद उसको पब्लिश करना, वो आपकी फिर से एक नई जो है उसमें आ जाएगी, लुक में आ जाएगी आपकी वेबसाइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो आई ट्राइड कि मैं आपको दोनों ही इसमें वेबसाइट डिजाइनिंग वाला बता सकूं टूल्स, और ज्यादातर Okay. एलिमेंट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। Okay. थैंक In यू। the end, I would like to thank our guest of honor, Mrs. Poonam Panchal ma'am. Ma'am, this lecture is very highly knowledgeable and it provides us a great opportunity to develop different type of websites and web pages. So thanks for your cooperation, ma'am. And we are looking forward for more such opportunities in the future also from your side. Well, this website is for those who just love to develop the web pages and websites. So students, I thank you all, specifically for BBA students. Thank you students for supporting us and this patience for listening. Thank you very much. And in the end, I would like to thank our department head, that is Dr. Jyoti Chaudhary ma'am. Thank you ma'am for your support. And special thanks to our mentor, that is Dr. Monica Sharma ma'am, who organized the event. Thanks everyone. With these words, I just want that we will look forward for these type of opportunities in future also. Thank you. Thank you so much। Thank you, ma'am. Thank you। All right।